Hello everyone, my name is Yogesh Mishra and for a change, today I have changed the routine and from now onwards, for 3 days we are going to study vocabulary and for 3 days in a week we are going to have some other topics of English language. So I hope you will enjoy this session. So let us begin. In today's session, I am going to talk about the error detection and in that I will try to explain you the basic rules of grammar with the help of error detection. So let us begin. We are not going to take much questions in a day. We are just going to take 5 to 6 questions, and based on those questions I will guide you in a very good manner for the grammatical rules that are very important for the competitive examination. So let us begin. So the first question today is, it is advisable that each time you encountered such a situation, keep your cool. Before beginning this session, I want to, make you understand some things, that whenever we are going to find out the error in any sentence, just try to find out the subject first. Okay. Try to find out what is the subject of the sentence. Then try to find out what is the verb in the sentence. Okay. And is there an agreement between subject or verb or not? Means क्या कि subject और verb के बीच में कोई agreement है या नहीं है. ठीक. अगर agreement है then it is okay, और अगर नहीं है तो फिर ठीक है, अपन देखेंगे उसको क्या करेंगे, फिर agreement करवाएंगे. ठीक. Subject singular है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए. सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए. ठीक. ये बेसिक एरर्स होती हैं. इसके अलावा और भी एरर आती है, जैसे प्रेपोजिशन की एरर हो सकती है. ठीक है. एडवर्ब की एरर हो सकती है, एडजेक्टिव की एरर हो सकती है. तो कई सारे लोग कभी कभी ये कह देते हैं कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार कर लो तो एग्जामिनेशन में एरर डिटेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी. बट ऐसा नहीं होता है. ठीक है. इवन द एग्जामिनर इज वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. तो वो आपको एरर जो है वो किसी भी पार्ट से दे सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस वेरी वेल. If you are not aware about that there are 8 part of speech, then you should be aware about that there are 8 part of speech and you should learn them very well. In the coming days, I will also be coming with the grammatical concepts with the parts of speeches. So talking about this question, it is advisable that each time you encountered such a situation, keep your cool. So talking about this question is basically from the general rule of grammar, that is tense. Whenever ये sentence जो है ये क्या है, ये इसमें advice दी जा रही है किसी को. ठीक है. ये advisable sentence है. तो जब भी हम किसी को advice देते हैं तो हम उसको we always give advice in present tense, और वो present tense भी किस में होना चाहिए, simple present या present indefinite tense में होना चाहिए. तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको एडवाइस करना होता है तो भाई साहब यहाँ एनकाउंटर्ड क्या कर रहा है, गलती पता चल गई ना. और देखिए एरर किसकी है, वर्ब की. तो एनकाउंटर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं तो एनकाउंटर्ड की जगह पे क्या होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए. सो सेंटेंस क्या होगा, इट इज एडवाइजेबल दैट ईच टाइम यू एनकाउंटर सच अ सिचुएशन, कीप योर कूल. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट concept. So the next sentence reads, accidents usually results into negligence, ignorance, recklessness or carelessness. Before getting the solution of this sentence, please try to understand that you have to understand the feeling of the sentence. ठीक है. ये language है my dear friends. ठीक है. और लैंग्वेज में ना फॉर्मुलेज नहीं होते, लैंग्वेज में फीलिंग होती है, लैंग्वेज में मीनिंग होती है. यू मस्ट हैव हर्ड दैट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड सेंटेंस. मीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए और फीलिंग सेंटेंस की समझ में आनी चाहिए. जैसे इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो एक्सीडेंट्स यूजुअली रिजल्ट इनटू, ये जो चीज है
ये सेंटेंस जो है ये मेरे को क्या बता रहा है, कौन सी फीलिंग दे रहा है, कॉज वाली फीलिंग दे रहा है कि नहीं। लेकिन मैंने यहां रिजल्ट इनटू लिखा हुआ है, रिजल्ट इनटू तो मुझे इफेक्ट वाली फीलिंग देता है ना, मैं कुछ करूंगा तो इट विल रिजल्ट इनटू समथिंग। गड़बड़ पता चल गई आपको। तो यहां पे एरर जो है वो ये है कि एक्सीडेंट यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम किससे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, नेग्लिजेंस से, इग्नोरेंस से, रेकलेसनेस से और केयरलेसनेस से। रिजल्ट इनटू इफेक्ट होता है, बट सेंटेंस जो है वो फीलिंग कैसी दे रहा है, कॉज वाली फीलिंग दे रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, रिजल्ट्स फ्रॉम का बजाय इसके रिजल्ट इनटू के। तो सेकंड पार्ट में आपके एरर है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस रीड्स, इन ऑर्डर टू इंश्योर क्विक सर्विस प्लीज गिव अस ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल एज क्विक एज पॉसिबल। एरर आपको समझ में आ रही है? जी हां, बिल्कुल ठीक। पार्ट 4 में एरर है, पार्ट 4 होल्ड्स द एरर। अब एरर क्या है? अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहां पे एज क्विक लिखा होगा तो एज क्विकली एज पॉसिबल होना चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए ना। बट लेट मी टेल यू, क्विकली जो है ना वो आपका क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक। और ट्रेडिशनल ग्रामर में होता यह है कि आपको यहां पे एक सिंपल डिग्री रखनी पड़ती है, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल डिग्री रखनी पड़ती है। एज क्विक एज पॉसिबल लिखा हुआ है तो इसे हो सकता था, लेकिन ये यहां सही है नहीं। तो एक कोरिलेटिव कंजंक्शन आपने सुना होगा, उसको हम लोग कहते हैं एज सून एज, ठीक। तो ये जो पेयर है ये यहां पे राइट है एज कंपेयर टू एज क्विक एज पॉसिबल, ठीक। सो एज और एज जो होते हैं बेसिकली ये दो कोरिलेटिव पेयर्स होते हैं, ठीक। और एज सून एज और इनके बीच में क्या आता है, एक एडजेक्टिव, एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, बट इनकी जो डिग्री होनी चाहिए वो सिंपल डिग्री होनी चाहिए, या फिर उसको पॉजिटिव डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री या सिंपल डिग्री, इसलिए यहां पे क्विकली ना होके एज सुन एज जो है वो ज्यादा बेटर है इन दी राइट ग्रामर, इन द फॉर्मल ग्रामर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल ग्रामर तो आप इसको क्विकली भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट आपको एग्जामिनेशन में फॉर्मल ग्रामर लिखनी होती है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। सो द नेक्स्ट वर्ड इज, द क्लब हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ पुअरली मेंटेन्ड फैसिलिटी। अब यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे एरर क्या है, तो मैंने पहले ही जैसी मैंने पढ़ा वैसी मैंने आपको बता दिया कि यहां पे जो एरर है वो क्या है कि यहां पे पुअर लिखा हुआ है कि नहीं। और मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, सो एडवर्ब बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेन्ड फैसिलिटीज। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, नाउन जो होता है, नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव उसके पहले लग के, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब उसके पहले लग के। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है, और ऐसी जो वो सीक्वेंसिंग होती है वो एकदम करेक्ट होती है। यहां पे फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो फैसिलिटीज जो है वो क्या है, नाउन है, ठीक। मेंटेन जो है, अगर ये नाउन हुआ तो मेंटेन क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा, अभी मैंने बताया कौन, एडवर्ब। यहां तो पुअर लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, पुअरली होना चाहिए, ठीक। तो ये इसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, तो पुअर की जगह पुअरली। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, सॉरी नॉट वर्ड, मेरी आदत वही बनी हुई है। To the next sentence. The next sentence reads, the company has appointed consultants to help them. Company, अगर आप थोड़ी बहुत ग्रामर भी जानते हैं तो कंपनी इज अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो उसके लिए तो मैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इट का यूज करता हूं ना। ही, शी, इट, ये दे और देम तो मैं किसके लिए यूज करता हूं,
किसके लिए? पर्सन्स के लिए। प्लस यहाँ कंपनी जो है वो क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करूंगा, तो दे और देम जो तो प्लूरल होते हैं, तो फिर गड़बड़ हो गया। ठीक, तो ये सब्जेक्ट आगे जो आपका क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा हुआ है वो क्या है? गलत है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। ठीक, तो यहाँ पे इट होना चाहिए इन द प्लेस ऑफ देम, तो सेकेंड पार्ट में एरर है। So these were the concepts and these were the questions for today. चलो एक क्वेश्चन कल के वीडियो में 6 क्वेश्चंस ले लेंगे, आज का वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर एक क्वेश्चन और लूंगा। So I hope you enjoyed the session. Please do tell me in the comment section that you come to know about at least 3 concepts today of the grammar. So that's all from today. We'll meet in the next video. Keep learning and keep watching English Wala. Thank you.